بیت المقدس کے اندر ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے یہودی، عیسائی اور مسلمان اس جگہ کو مقدس مانتے ہیں؟ قبلہ کیا ہے؟ چلیے سب سے پہلے یہ جانیے کہ قبلہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک نماز پڑھتے وقت چہرے کا رخ یعنی قبلہ کعبہ شریف کی طرف رہا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 17 ماہ قبلہ بیت المقدس رہا، یعنی بیت المقدس بھی قبلہ تھا۔ یہ عبادت گاہ پہلا قبلہ دراصل ایک مقدس چٹان ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے یہاں ایک عالیشان عبادت گاہ بنے۔ ان کے خواب کی تعبیر کے لیے ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس چٹان کے اوپر ایک عبادت گاہ بنوائی جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہی بیت المقدس ہے جس کا مطلب ہے پاک جگہ یا پاک گھر۔ بیت المقدس یروشلم اور بیت اللہ مکہ دونوں اللہ کے گھر ہیں۔ دونوں کے معنی پاک گھر اور اللہ کا گھر ہے۔ سوچئے کتنی عظیم نشانی ہے۔ بیت المقدس جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس تعمیر کروا رہے تھے، اسی درمیان ان کی وفات ہو گئی۔ تعمیر کے بعد یہودیوں نے تابوت سکینہ اس میں رکھ دیا۔ سارے یہودی بیت المقدس میں رکھے تابوت سکینہ کی جانب منہ کر کے نماز یعنی عبادت کرنے لگے۔ اس طرح یہ یہودیوں کا مقدس جگہ بن گئی۔ اب بتاتے ہیں کہ کیا ہے تابوت سکینہ۔ تابوت یعنی صندوق اور سکینہ مطلب جس سے سکون ملے۔ اس مبارک صندوق سے یہودیوں کو بہت سے فیض حاصل ہوتے تھے، جیسے جہاد پر جاتے وقت دشمنوں کی تعداد دیکھ کر جب یہودی خوفزدہ ہونے لگتے اور ڈر کے مارے سب کے پسینے چھوٹنے لگتے، یہاں تک کہ ان کی حالت دم دبا کر بھاگنے کی ہو جاتی، تب وہ نعرے لگا کر اس صندوق کو سب سے آگے رکھ دیتے۔ اللہ عز و جل اس صندوق کی برکت سے یہودیوں کی مدد کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دیتے۔ آسمان میں اذا جاء نصر اللہ والفتح قریب کی صدائیں گونجنے لگتی اور چاروں جانب روحانی ماحول ہو جاتا۔ آیات کا ورد سن کر اور اس تابوت کی برکت سے ڈرپوک یہودیوں کے دل مضبوط ہو جاتے، ان کے جسم میں روحانی طاقت آ جاتی جس سے انہیں سکون حاصل ہوتا۔ اس لیے صندوق یعنی تابوت کو تابوت سکینہ کہا جانے لگا۔ تابوت سکینہ میں کیا رکھا تھا؟ یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جس کی لمبائی چوڑائی تقریباً 40 بائی 40 فٹ تھی۔ یہ مقدس صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی جسے وہ جنت سے لائے، وہ بھی اسی میں رکھا ہوا تھا۔ یہ آخر تک آپ کے پاس ہی رہا، بطور معراج ایک کے بعد ایک آپ کی اولادوں کو ملتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا ان کے بیٹے مدین، پھر ان کے ونشج حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا بکریاں چراتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا جو ان کے داماد بھی تھے۔ بعد میں یہ تابوت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا عصا یعنی لاٹھی بھی صندوق میں رکھ دیا گیا۔ دوسری طرف یہ تابوت سکینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام سے ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنتی کرتا اور آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کا کمربند یعنی بیلٹ بھی تھا۔ اس طرح یہ سبھی نشانیاں اس میں جمع ہوتی رہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت مدین کے بیٹے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد تھے۔ ان کے بعد یہ تابوت حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس میں تورات شریف کے نسخے اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ چونکہ تابوت بہت بڑا اور شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اللہ عز و جل کی قدرت سے ہزاروں برس صحیح سلامت رہا، نہ سڑا نہ گلا۔ اس میں آپ کی لانِ مبارک اور بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا امامہ شریف بھی رکھا تھا۔ آسمان سے اترنے والا کھانا منو سلوا بھی بطور تبرک اس برتن میں محفوظ تھا۔ سب ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت والا صندوق تھا۔ اس تابوت کا ذکر قرآن شریف میں پارہ نمبر 2 سیکل آیات نمبر 248 رکوع نمبر 16 پر ہے۔ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تو لوگ اس صندوق سے فیصلہ کرتے۔ کرامت یہ تھی کہ صندوق کے فیصلے کی آواز اور فیوچر میں ہونے والی فتح کی بشارت بھی بنی اسرائیل کو سنائی دیتی۔ تابوت سکینہ سے کیسے فیض حاصل کرتے تھے؟
बनी इसराइल संदूक को अपने आगे रखकर इसमें रखी पाकीज़ा चीज़ों का वसीला बनाकर दुआ मांगते और उनकी दुआएं मकबूल हो जाती और आने वाली बलाएं, बीमारियां और मुसीबतें टल जाया करती थी। यानी बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना बरकत, रहमत का खजाना और अल्लाह की मेहरबानियों का मुकद्दस जरिया था। ताबूत सकीना हज़रत मूसा तक कैसे पहुंचा, ये तो आप सबको पता चल गया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ताबूत का क्या हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बढ़ गई। कौम तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गई। तब अल्लाह अज़्ज़ व जल का बनी इसराइल पर अज़ाब नाजिल हुआ कि उन लोगों पर बनी अमालका नामक एक काफिर कौम ने हमला कर दिया। इन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्लेआम करके यरूशलेम को तहस नहस कर डाला, उनके घर तक ज़मीन दोज कर दी और उनके ताबूत सकीना भी छीन लिया। उस वक्त तक ताबूत को बनी इसराइल एक गाड़ी पर रख कर लिए फिरते थे। काफिर कौम अमालका ने ताबूत सकीना की अहमियत को नहीं समझा। इस मुकद्दस ताबूत को लूट कर ले गए और उन लोगों ने अपने देश ले जाकर इसे कूड़ेदान में फेंक दिया। ताबूत सकीना की बेअदबी करने पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कौम अमालका को तरह तरह की बीमारियों और अजाब में मुब्तला कर दिया। वहाँ के लोग बवासीर से मरीज़ हो गए और जहाँ देखो वहाँ चूहे ही चूहे नज़र आने लगे, जिससे वहाँ प्लेग यानी ताउन फैल गया। करीब 5 दस्तियाँ इस बीमारी से साफ़ हो गई। अजाबों का सिलसिला देखकर कौम अमालका के बादशाह को यकीन हो गया कि ये बला उस संदूक की बेअदबी की वजह से आई है। चुनांचे उन लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बनी इसराइल की बस्ती यरूशलेम की तरफ हाँक दिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फ़ौरन 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुकद्दस संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले आए। ये वाक़या कुरान मजीद में तफसील से लिखा है। इस तरह फिर बनी इसराइल को उनकी खोई हुई शान और नेमत दोबारा मिल गई। ये संदूक हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास ठीक उस वक्त पहुंचा जब आप हज़रत तालूत को बनी इसराइल का सरदार यानी बादशाह बनाने के लिए बनी इसराइल को समझा रहे थे। लेकिन बनी इसराइल हज़रत तालूत को बादशाह मानने पर तैयार नहीं थे। आखिर उनमें यही शर्त ठहरी थी कि ताबूत सकीना अगर उन्हें मिल जाए तब हम तालूत को बादशाह तस्लीम कर लेंगे। चुनांचे संदूक आ गया और बनी इसराइल हज़रत तालूत को बादशाह मानने पर राज़ी हो गई। तालूत के बादशाह बनने के बनी इसराइल का सामना जालूत नाम के एक जालिम बादशाह से हुआ जिसने बैतुल मुकद्दस शहर पर कब्जा कर रखा था। बैतुल मुकद्दस को फतेह करने के लिए जालूत को मारना ज़रूरी था। 17 बरस के एक नौजवान ने बनी इसराइल को निजात दिलाई, यानी उन्होंने जालूत को मौत के घाट उतार दिया। तालूत ने वादे के मुताबिक अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और आधी बादशाहत भी उसे दे दी। इस तरह ताबूत सकीना भी उस लड़के को मिला। क्या आप जानते हैं वो नेक लड़का कौन था? जी हाँ, वो थे बैतुल मुकद्दस की तामीर का ख्वाब देखने वाले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम पर 30 बरस हुकूमत की। आपकी दिली ख्वाहिश थी कि ताबूत सकीना को महफूज रखने के लिए एक मुकद्दस इमारत बनाए। आपने उस इमारत को बनाने के लिए जगह भी पसंद फरमाई। अल्लाह के हुक्म से उसी जगह पर आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों की मदद से एक मस्जिद तामीर करवाई, जिसका काम लगातार साल साल तक चलता रहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों के अलावा जिन्नों, चरिंदों, परिंदों और हवाओं पर भी थी और उनकी सारी ताकत एक जादुई अंगूठी में थी जिसे आप हमेशा पहना करते और आपके गले में एक तावीज़ था जिस पर आने वाले नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुदा हुआ था। आपकी ये जादुई अंगूठी भी इस ताबूत में रख दी गई। इसी मस्जिद में एक खास और मुकद्दस जगह पर ताबूत सकीना को रखा गया जिसकी तरफ मुँह कर कर यहूदी इबादत करने लगे। ये मस्जिद बाद में हैकल सुलेमानी से मकबूल हुई। इसके आसपास बहुत से पैगंबर अलैहिस्सलाम की मज़ार और पैदाइशी मुकाम भी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों ने यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज भी अदा की। ये ताबूत जिस मुकद्दस चट्टान पर रखा था वहाँ आज गुंबद सखरा यानी डोम ऑफ द रॉक है, जिसकी तरफ मुँह करके शुरुआती 17 महीने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई और यहीं से मिराज की। ये हमारी किबला अव्वल है। इसी मुकद्दस चट्टान के नीचे बतौर निशानी मस्जिद आज भी बनी हुई है। इसी चट्टान पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इबादत किया करते थे। यहाँ प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज़ पढ़ी। यहीं पर मरियम बिनते इमरान ने इबादत की जहाँ उनके लिए खाना आसमान से आता था। इसका जिक्र भी कुरान में है।
लिहाजा ये जगह ईसाइयों के लिए भी खास हो गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटों में यरूशलेम बढ़ गया और बनी इसराइल में ना इत्तेफाकी बढ़ने लगी। बनी इसराइल एक अल्लाह अज़्ज़वजल की इबादत छोड़कर हैकल सुलेमानी में पूजा पाठ करने लग गए। नतीजतन दोबारा बनी इसराइल पर अल्लाह का कहर बरपा। ईसा से 600 बरस पहले बाबुल के बादशाह बख्ते नसर ने यरूशलेम और हैकल सुलेमानी को ज़मीन में मिला दिया। कुछ बरस बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बाद वापस इसकी तामीर हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने करवाई। फिर टाइटस रोमानों ने इस तीसरी बार ज़मींदोज़ कर दिया और हैकल सुलेमानी के खजाने और ताबूत सकीना को लूट लिया। इसके बाद से ताबूत सकीना का आज तक पता नहीं चला। अब कहाँ है ताबूत सकीना? फ़िलहाल ताबूत सकीना गायब है या लोगों की नज़रों से ओझल है। जब क़यामत करीब होगी तब ताबूत सकीना को हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ढूंढ लेंगे और इसमें रखे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा यानी लाठी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से काफिर और मोमिन की पहचान करके हर मोमिन और काफिर की पेशानी पर निशान लगाएंगे। मोमिन की पेशानी पर हज़ा मोमिन हक़ का और काफिर की पेशानी पर हज़ा काफिर छप जाएगा। इरशादुल तालिबीन पेज नंबर 400 क़यामतनामा। अल्लाह इज़्ज़ोजल मुझे और आपको ज़िंदगी में एक बार काबा शरीफ और मस्जिद नबी के साथ बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत कराए, जहां अल्लाह इज़्ज़ोजल ने बरकत रखी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।